Assalamu alaikum. Welcome back to another vlog. As I said in the last vlog, that I have been doing some efforts to eat healthy, to eat mindfully, and hopefully to also lose a little bit weight. So that is why today I'm here to share with you my routine. So, what I eat in a day to achieve my goals. So let's see how it goes. So I will be sharing with you guys my breakfast, dinner, and snacks. So basically, I eat twice a day, not thrice. I mean, I can if I want to. So I keep a little bit of snacking for the one more time, and that's it. So I will be sharing with you some healthy breakfast first of all, which I have shared before, but let's make it in this one video, the whole thing. I hope it helps you with this routine. With calorie deficit diet, basically you can lose up to 1 or 1.5 kg per week. I don't want to deprive myself of anything. I am not, let's say, making habits of not eating particular stuff. I'm eating everything. It's just that I eat in moderate amounts and try to make healthy choices. So that's what I do. I cannot do low carb or no carb diet, keto diet, etc. I am not fond of that. I never have done that. I mean, I like healthy foods actually. Personally, some people find it boring or maybe have very bland tastes, but in my case, I don't know, I like oats and chia seeds and these kind of things. So I even eat them even when I am not looking for my weight. Yeah, but normally I top it with so many things that I make it very more healthy, I would say, but have a lot of calories in it. But nowadays I am just trying to not add too many toppings or not at all any toppings, just to have a calorie deficit breakfast. But when I will achieve my goal weight, I might start adding some toppings again to maintain my weight. So that's how you can go with it. So let's start the day. First step, drink water. सबसे पहले पैन के अंदर डालें 300 ml वाटर. देन आई ऐड ओट्स. तो मैं ये वाले ओट्स यूज़ करती हूँ. आप कोई भी ओट्स जो अवेलेबल है वो ले लें. इसमें हम डालेंगे 1/4 कप ऑफ ओट्स. लेट इट बॉयल. बॉयल आ गया इसमें. अब हम इसमें डाल देंगे 100 ml ऑफ मिल्क. आई एम यूजिंग फ्रेश मिल्क विथ 3.5% फैट. ये इसमें बॉयल आ गया है. वी कैन रिमूव इट फ्रॉम द हीट एंड आवर ओट्स आर रेडी. नाउ टेक द बाउल जिसमें आपने खाने हैं अपने ओट्स. इसके अंदर अब मैं डालूंगी पहले चिया सीड्स. चिया सीड्स में लेती हूँ नॉर्मली 2 टेबल स्पून. इसमें हीप्ड तो आप नहीं कर सकते बेसिकली इतना. और ये नॉर्मली 20 ग्राम तक होता है. लेट्स सी. हाँ, एग्जैक्टली 20 ग्राम. चिया सीड्स के ऊपर हम अपना जो हमने बनाया है ओट मील वो हम पोर कर देंगे सारा. यू फाइंड इट वेरी रनी एट द मोमेंट. जस्ट वेट अ फ्यू मिनट्स. ये जो चिया सीड्स हैं ये सारे भी स्वेल कर जाएंगे, तो उसके बाद फिर कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी. तो हमारा ओट मील रेडी हो जाएगा. थोड़ी देर बाद इनको दोबारा मिक्स कर दें ताकि चिया सीड्स जो ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं वो भी डिज़ोल्व हो जाए. तो अब इसको ठंडा करके हम खाएंगे. और इसके ऊपर आप टॉपिंग्स डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, सेब, केला वगैरह. लेकिन अभी अगर आप कैलोरी डेफिशिएंट डाइट पे हैं तो आई विल रिकमेंड नॉट टू ऐड फ्रूट्स राइट ऑन टॉप राइट नाउ, बिकॉज यू नो हम ड्यूरिंग द डे थोड़ा बहुत ब्रेक डाउन करके चीज़ें खाएंगे ताकि हम एक ही दफ़ा में सारी कैलोरीज ना खा लें. तो आई विल ऑल्सो टेल यू द टोटल कैलोरीज ऑफ इट. ओके, नेक्स्ट टू माई मील मैं नॉर्मली नाश्ते में लेती हूँ कोल्ड कॉफ़ी. तो अभी हम कोल्ड कॉफ़ी बनाते हैं. Now we will use Oatly milk in our coffee. So I was aiming for 100 ml, but it's fine.
So today I'm using Rosso Cafe Purismo number 5, soft and balanced and light roasted. 2 pours of it. The coffee smells very nice. So this is my breakfast जो अभी मैं खाऊंगी. I love it. Maybe it's too maybe some people don't like to eat it, बट आप इसी के वेरिएशंस कर सकते हैं जिस तरह आपको पसंद है. आप कोल्ड कॉफ़ी की जगह चाय या सिंपल कॉफ़ी, लेकिन दूध कोशिश करें 100 ml से ज़्यादा यूज़ ना करें. 100 ml वो भी लो फैट वाला. और बाकी चिया सीड्स में मैंने 100 ml विद 3.5% फ़ैट यूज़ किया था. सो दैट वॉज माई ब्रेकफास्ट. हेल्दी भी है, कैलोरीज भी बहुत ज़्यादा नहीं है, एंड यू आर गेटिंग गुड फाइबर विच मीन्स यू विल स्टे फुल फॉर लॉन्गर. अब इसके बाद जो है ना, मैंने नाश्ता बहुत जल्दी नहीं किया. मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग के साथ कर रही हूँ, तो मैं रात को कोशिश करती हूँ कि मैं 6 से 7 तक मैं खा लूँ मैंने जो खाना है. उसके बाद मैं अगले दिन सुबह 10 के बाद खाना खाती हूँ. तो दैट्स माई रूटीन. तो मेरी कोई 15-16 घंटे, कभी 16 घंटे, कभी 14 घंटे की इंटरमीडिएट फास्टिंग हो जाती है. तो आई डोंट टेक इट टू स्ट्रिक्टली, बट आई ट्राई टू डू इट एज मच एज आई कैन. और क्योंकि कभी रात का खाना लेट भी हो जाता है. जैसे अब कल मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ थी, तो मैं रात को थोड़ा लेट खाना खाया. बट नॉर्मली एवरीडे रूटीन जो है वो, उसमें मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 15 घंटे 16 घंटे की इंटरमीडिएट फास्टिंग कर लूँ, विच ऑल्सो हेल्प्स इन लूजिंग वेट. फिर उसके बाद इतना अच्छा आप हेल्दी ब्रेकफास्ट खा रहे हो सुबह, तो डेफिनेटली ओवरऑल आपकी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स ही मिलने चाहिए, और साथ साथ आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कैलोरीज भी ना ले रहे हों. दैट इज़ द ओनली वे टू अचीव योर आइडियल गोल एंड नॉट ड्रास्टिकली इम्पैक्ट योर हेल्थ एट द सेम टाइम. क्योंकि जब कभी हम खाना नहीं खाते हैं या बहुत बिल्कुल भूख हड़ताल कर देते हैं, तो फिर चक्कर भी आते हैं, सारा कुछ होता है. बट ऑफ कोर्स द फर्स्ट फ्यू डेज विल ऑलवेज बी हार्ड, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है जब बिलाल यहाँ पे होते हैं, हम लोग नाश्ते में पराठे बना के खाते हैं, और फिर उसके बाद जब एक दिन में पराठा स्किप करना पड़ता है ना, तो इट्स लाइक यू नो. बट और ये चीज़ें मैं अकेले ही करती हूँ. मैं बिलाल होते हैं तो उनके साथ मैं नहीं कर पाती, बिकॉज ही डजंट डू इट इन दिस वे. तो हमारा थोड़ा हो जाता है कि यार चलो अब वो खा रहे हैं तो मैं क्या साथ अलहदा बनाऊँ अपने लिए, बट आई हैव टू कीप इट कंसिस्टेंट. तो मैं कोशिश करूँगी एटलीस्ट 1-1.5 माह अगर आप ये रूटीन रखते हैं, आप अपने आइडियल गोल पे पहुँच जाते हैं वेट पे. उसके बाद आई मीन यू कैन इंक्रीज़ योर इनटेक, बट स्लोली और ग्रेजुअली आपने जो करना है, और इतना ही करना है कि वेट मेंटेन हो. फिर उसके बाद ड्रास्टिकली दोबारा जो है वो बढ़ ना जाए, वरना फिर दोबारा यहीं खड़े हो जाएंगे स्क्वायर वन पे. तो दैट्स द आइडिया. ऑल्सो आई एम ऑलवेज वेरी लेज़ी टू डू डाइट्स, बट चलो अल्लाह करे, अल्लाह हिम्मत दे हम सबको. खैर, अभी मैं अपना नाश्ता एंजॉय करती हूँ, और फिर इसके बाद आपको मिलते हैं लंच के टाइम. और अगर इसके बीच में मैंने कुछ खाया या कुछ हुआ तो मैं आपको आई विल रिपोर्ट दैट. तो चलें जी, नाश्ते के तकरीबन 1.25-2 घंटे के बाद अभी मैं जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए वॉक करने के लिए. तकरीबन आधा पौना घंटा मैं वॉक करूँगी. दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. आप फिज़िकली एक्टिव अगर रहें तो बेहतर है, क्योंकि घर के काम भी होते हैं, वो भी इंसान करता है, उससे भी काफ़ी एक्सर्जन हो जाती है. लेकिन इसके साथ साथ अगर आप आधा घंटा वॉक करें तो बेहतरीन है. तो अभी चलते हैं, थोड़ी फ्रेश एयर लेते हैं इसी बहाने, और वॉक करके आते हैं. वाहिद तो बारिश आने लग पड़ी है जैसे ही मैं वॉक के लिए बाहर आई हूँ. आज नॉर्मली थोड़ी धूप होती है. Okay, so I'm back from the walk. Just look at how fresh you feel when you come back from a walk. It was cold but very nice to walk for 45 minutes. Now I will just relax for a bit and then think about the lunch. चलें जी, यहाँ मैंने सब्जियाँ निकाल ली हैं जो जो मुझे चाहिए, और मैं ट्रांजिशन नहीं कर रही क्योंकि कुछ भी ऐसे नहीं कटता.
तो प्याज जो है वो मैंने काट के चॉप करके 2 चम्मच सिर्फ ऑलिव ऑयल के डाल के उसके अंदर सौते किए हैं। उसके साथ ही मैं एक पूरा गार्लिक जो है वो चॉप कर रही हूँ। इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ जो हैं उसकी वजह से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, और इसका टेस्ट ऑफ कोर्स वी लव इट। इसको भी डाल के अच्छे से सौते कर लेंगे प्याज के साथ, और फिर उसके बाद हम इसमें चिकन डाल देंगे। जितनी मैंने मेजरमेंट्स यूज़ किया हर चीज़ की वो भी मैं मेंशन कर दूँगी एंड पे, और कैलोरीज़ भी आपको इस रेसिपी की पता चल जाएंगी। तो चिकन को अच्छी तरह भून लें, उसको कच्चापन थोड़ा ख़त्म कर लें। अब सब्जियां आप कोई भी डाल सकते हैं जो आपके पास पड़ी हैं, फ्राइड राइस जैसे आप लोग बनाते हैं। यहाँ पे मेरे पास गाजरें पड़ी हुई थी, मैं इनको काट रही हूँ। तो उनको मैं पतला पतला और छोटा छोटा काट रही हूँ। वो काट के मैंने साथ थोड़ा सा उसको भी हल्का सा भून लूँगी। बहुत कम ऑयल डाला मैंने, तो आपको लगेगा जैसे ऑयल नहीं है, लेकिन नॉन स्टिक बर्तन में बनाए ज़बरदस्त बनेगा। उसके बाद जो है मशरूम्स कुछ काट लिए हैं मैंने, वो भी मैं इसके अंदर अब डाल दूँगी। थोड़ा सा पहले साइड में उनको भून लूँगी हल्का सा, और उसके बाद मिक्स कर दूँगी। तो मशरूम्स डालें। उसके अलावा जो है अब इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसमें मसाले डालेंगे, जैसा कि 1 चम्मच काली मिर्च की, टीस्पून 1 टीस्पून सॉल्ट की। उसके बाद मैं कुछ 20 ml के आसपास सिरका डाल रही हूँ, विनीगर। और इसके बाद मैं सोया सॉस डालूँगी। यहाँ पे मैं ऑयस्टर सॉस डाल रही हूँ थोड़ी सी। आप कोई भी और सॉसेस यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको पसंद है, लेकिन थोड़ी थोड़ी डालें और थोड़ा फ्लेवर आ जाएगा उससे। अच्छी तरह इसको भून लें, और लास्ट में मैं थोड़ी शिमला मिर्च डालूँगी, जो मैं बिल्कुल एंड पे डाल रही हूँ, ताकि इसका कच्चापन जो है ना वो थोड़ा बरकरार भी रहे, और थोड़ी सी हल्की सी बस पके ये। तो अब ये हम आखिरी स्टेप में ये डालते हैं, और इसको अच्छे से मिक्स करके पका लें, बट डोंट ओवर कुक इट। और जैसे ही सारा कुछ एक दफ़ा यूनिफॉर्म हो जाए, उसके बाद आखिरी स्टेप में हम इसके अंदर डाल देंगे अपने बॉयल्ड ब्राउन राइस। और ये सारे डाल के अच्छी तरह मिक्स करने के राइस के ऊपर पूरी कोटिंग आ जाए सारे मसालों की, और थोड़ी देर इसको पकाएं। वो जो फ्राइड राइस का इफ़ेक्ट आता है वो जब इसके अंदर आ जाए, उसका मॉइस्चर सारा निकल जाए, तो दैट इज़ इट, इट्स रेडी। यहाँ पे खाना बना के मैंने पूरे मील का वेट किया था, वो 1350 ग्राम था, और इसके मैंने टोटल 3 पोर्शन साइजेस बनाए थे। और जो है ना आज लंच में मैं यही खा रही हूँ जी। लंच की बारी आती है, अब हम अपना पोर्शन जो है जो हमने खाना है वो हम निकाल लेते हैं फ्राइड राइस का। तो ये मैंने पोर्शन निकाल लिया है। 400 ग्राम था, लेकिन अब ये अचानक ये 413 पता नहीं क्यों होना शुरू हो गया। एनीवेज, तो दिस इज़ व्हाट आई विल ईट नाउ। चलें जी, तो मेरा लंच भी हो चुका है, लंच कम डिनर समझ लें आप। और अल्हम्दुलिल्लाह पेट फुल हो चुका है, फीलिंग गुड। अब जो है ना, इसके बाद आई विल स्टिल ईट सम फ्रूट्स, बट इन सम टाइम। सो सी यू देन। अब बारी आ गई है स्नैक्स की। तो स्नैक्स में मैं जो हूँ कुछ पोमग्रेनेट्स खाऊंगी, क्योंकि एक तो इससे फाइबर मिलेगा, और दूसरा ऑफ कोर्स अच्छी चीज़ है। तो इसके अलावा एक कीवी खाऊंगी। तो दीज आर द 2 फ्रूट्स दैट आई एम गोना ईट नाउ। सो लेट्स मेजर इट। चलें जी, ये बाउल रखते हैं, ऑन करते हैं मेजरमेंट मशीन को। आई एम गोना टेक, आई डोंट नो, 60 ग्राम में भी, चलो 80 कर लेते हैं। क्या मेजरमेंट किया मैंने? 80 ग्राम। ओके, दैट्स व्हाट आई एम गोना ईट। अनार। बाकी कीवी को भी काट लेते हैं। इसके ऊपर डालूंगी मैं थोड़ा सा काला नमक, 2 चुटकियाँ, और इस पर थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे। चलें जी, प्लेट की मेजरमेंट मैंने पहले ले ली थी, तो 81 ग्राम ही बनी कीवी भी। 82। ओके, तो डालते हैं इससे मसाले। चलें, बस बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना। सो यू माइट बी वॉन्डरिंग कि मैं अनार ही क्यों खा रही हूँ और कीवी ही क्यों खा रही हूँ। ये ऐसे फ्रूट्स हैं कि जिनसे एक तो आपको बहुत सारे अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, दूसरा इन ये दोनों फैट को कम करने के अंदर हेल्पफुल होते हैं।
इसलिए मैं स्पेसिफिकली ये 2 फ्रूट्स खा रही हूँ। तो ये अपनी डेली रूटीन में आप थोड़े-थोड़े भी खाएँ, एक तो आपकी विटामिन सी पूरी हो जाएगी, एक कीवी खा लें, आपका विटामिन सी दिन का पूरा। और पोमेग्रेनेट फाइबर, लॉट ऑफ फाइबर, और वैसे भी जो इसके अंदर फैट बर्निंग प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो अलहदा हैं ही अच्छी। तो बस ज़बरदस्त किस्म का, ऊपर से थोड़ा-सा काला नमक डाल के खाओ तो मस्त लगते हैं। A few moments later. तो एक और चीज़ जो भी मैं खाऊंगी दैट इज़ दिस प्रोटीन, हाई प्रोटीन पुडिंग। तो ये मैंने जो है ली है आल्डी से। इसके ये कैरेमल फ्लेवर की है और इसके अंदर शुगर नहीं है इतनी, लेकिन ये मैं पहली दफ़ा ट्राई करूँगी। मैं इसके अलावा योगर्ट्स खाती हूँ, हाई प्रोटीन योगर्ट्स, वो मैं थोड़ा इस तरह की पैकिंग लाऊँ तो आधी पैकिंग एक दिन खा लूँगी, तो थोड़ा मुझे डिज़र्ट वाला मज़े का इफ़ेक्ट आ जाता है, तो क्रेविंग सेटिस्फाई हो जाती है कुछ। तो अभी मेरी दिन की कैलोरीज वैसे ही बची हुई हैं, तो इट वॉन्ट हर्ट मी, तो मैं ये खाऊँगी। आई डोंट नो कैसी होगी ये पुडिंग, बट लेट्स सी। इट्स रियली नाइस। कैरेमल का फ्लेवर है, लेकिन अच्छे वाला फ्लेवर है, लाइट सा, ऐसे बहुत हैवी नहीं है। नाइस। अच्छा, अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाती हूँ कि मैं जो ऐप यूज़ करती हूँ अपनी कैलोरीज ट्रैक करने के लिए, वो है माई फिटनेस पैल। और दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड एट ऑल, दिस इज़ जस्ट समथिंग आई यूज़ एंड आई रियली वुड लाइक टू शेयर इट विद यू ऑल। इसके अंदर क्या होता है कि आप अपनी कैलोरीज ट्रैक कर सकते हैं। तो मैं नाश्ते से लेकर डिनर तक जो भी खाती हूँ वो सब की मैं ऐड करती रहती हूँ। तो उसके अंदर काफ़ी ऑप्शंस आते हैं। जैसे आपने फॉर एग्जांपल ओट्स खाए हैं, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, आपने जो ओट्स का पैकेट लिया हुआ है उसके ऊपर एक बार कोड होता है, आप डायरेक्टली इसको स्कैन करो, वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है एज कि आपने उसके इंग्रेडिएंट्स को पता होते हैं, उसके अंदर कितने मैक्रोज हैं, क्या न्यूट्रिएंट्स हैं, सब कुछ पता होता है ऐप को। तो आप सिर्फ बता दो क्वांटिटी कितनी कंज्यूम की है। और उससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा। कई दफ़ा हम खाना खा रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं चलता, हम कैलोरीज बहुत ज़्यादा खा लेते हैं और हमें समय लगता है हमने थोड़ा थोड़ा सब कुछ खाया है। या हम खाना बनाते हुए ऑयल थोड़ा ज़्यादा डाल दिया, कुछ भी ऑयल 1 चम्मच डालो, 100 कैलोरीज ऐड हो जाती हैं, उससे ज़्यादा ही बल्कि होती होंगी। तो पॉइंट ऑफ ऑल दिस इज़ कि अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बहुत माइंडफुल होकर अपना खाना जो आप खा रहे हैं वो हमेशा आपको सोच समझ के बनाना भी होगा और खाना भी होगा। पोर्शन कंट्रोल करना है, और खाना बनाते हुए उसके अंदर कोशिश करें ज़्यादातर मीट्स, पल्सेस ये यूज़ करें, वेजिटेबल्स यूज़ करें, और रोटी चावल साथ जो भी लें वो थोड़ा सा लें थोड़ा सा लें, दैट इज़ द पॉइंट। और हाई जो फाइबर वाली खाने हैं वो खाएं, ताकि एक तो आप उससे फुल फील करेंगे और आपको ज़्यादा भूख नहीं लगेगी। और शुरू में क्या होता है, शुरू में तो ऑफ कोर्स आप को पहले 2 दिन तो जैसे आपको वो बॉडी जो आदत पड़ी होती है हमें ज़्यादा खाना खाने की, तो आपकी बॉडी आपको आपसे मांगेगी, लेकिन आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, उसके बाद आपको आदत पड़ जाएगी। तो दैट विल बी माई फाइनल मैसेज, दैट इज़ वट लाइफ इज़ अबाउट, बैलेंस एंड बैलेंस। तो आई होप आप लोगों को जो मेरी रूटीन है वो अच्छी लगी हो, और आप लोगों को किसी को भी अगर से मोटिवेशन मिले और कोई इसी तरह के सेम गोल्स अचीव करना चाहता है, तो अगर उसके लिए हेल्पफुल हो, आई विल बी सो ग्लैड। अगर आप लोग मुझे बताएं कमेंट्स में कि अगर आपको मेरी कोई भी बात यूज़फुल लगी या हेल्पफुल हुई, तो आई विल बी रियली ग्लैड। और इसी के साथ ही हम ये व्लॉग ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।